So students, today we are going to discuss the topic cell division. Prior to this, we had a detailed discussion on the cell cycle, cell growth, and now we are going to discuss the topic cell division. So the first question which arises here is why? What is the need of the cell division? What is the need of the cell division? Why this process of the cell division takes place? Division means बटना, किसी भी चीज का विभाजन. सेल डिवीजन मीन्स सेल का विभाजन, कोशिका का विभाजन. So why it is required? What is the need of the cell division? We all are very well aware that until and unless there will be no division, new organism cannot be formed. So सबसे पहला जो इसका importance है वो किसके लिए है? First importance is for the multiplication. The process of multiplication, the phenomena of multiplication takes place only due to the presence of the cell division. And the second important feature of the cell division, why it is taking place, why it is required for the cell, it is required for the repairing of the damaged tissues. Whenever we get hurt, whenever we get some injury on our body, then all of a sudden after 1 or 2 hours we can see that there will be a clotting of the blood, cells will come and the bleeding will stops automatically. In the extreme conditions of injury, it would be the wound should be treated with some medicines. Otherwise, in a normal injury, recovery of the injury get self by the body. So why the repairing of the damaged tissues is there by the cell division? सेल में डिवीजन होता है, सेल्स आकर वहाँ पर अटैच होती हैं, ब्लड की क्लॉटिंग होती है, 1-2 दिन के बाद वहाँ पर एक पतली सी लेयर आ जाती है और नीचे से नई स्किन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्किन इज जस्ट ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल डिवीजन. सो दिस इज द नीड ऑफ द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन क्यों होता है, क्यों होना चाहिए? एक तो मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक ऑर्गेनिज्म को अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए सेल डिवीजन करने की जरूरत होती है. और सेकेंड पॉइंट इज फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द डैमेज टिश्यूज. जितने भी हमारी बॉडी के अंदर क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं, क्षतिग्रस्त टिश्यूज हैं, उन सब की जो रिपेयरिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? सेल डिवीजन के ही थ्रू होती है. नाउ how this process will takes place, आप जानते हैं there are 2 type of organisms, unicellular organisms and multicellular organisms. Unicellular organisms, they are made up of one cell. So all the processes of the life, all the supporting systems of the life are get completed only within a single cell. एक ही सेल के अंदर लाइफ के सारे प्रोसेसेस होते हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, सिक्रीशन हो, एक्सक्रीशन हो, ऑल द डिवीजन हो, रिप्रोडक्शन हो, all the processes of the life will get completed only within a single cell. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, सपोज ये एक सिंगल सेल है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, इट मे बी अमीबा, इट मे बी पैरामीशियम और एनी अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो. सो हाउ द सेल डिवीजन विल टेक्स प्लेस? सिंपली द डिवीजन विल टेक्स प्लेस here, and by the division from the one cell, 2 cells will get formed. So this is the process of cell division. This is a very simple process of cell division which is taking place in the case of unicellular organisms. While what would be there for in the case of multicellular organisms? In the case of multicellular organisms, multi means many. Multicellular organisms have
a group of cells. There are lots of cells which are present in the body, or we can say that body is made up of many cells. इसके अंदर बहुत सारी cells होती हैं, and due to the presence of these many cells, the division of labor is found there. आप पहले पढ़ चुके हैं. So how the process of cell division will take place in these multicellular organisms? आपने पढ़ा है multicellular organisms में क्या होता है? There would be one male and one female. By the fusion of the reproductive spores, we can say by the fusion of sperm and ovum, the formation of the zygote will be there. n नंबर के क्रोमोसोम्स दोनों से आएंगे, 2n नंबर का जायगॉट बनेगा. एंड नाउ दिस जायगॉट विल हैव द डिवीजन. इस जायगॉट के अंदर डिवीजन होगा. जब जायगॉट के अंदर डिवीजन होगा तो यहां से क्या बनेगा? एक एम्ब्रियो डेवलप होगा. एक सेल, पहले सिंगल सेल है, सिंगल सेल से डबल सेल स्ट्रक्चर आएगा, 2 सेल्स बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, और इसी तरह से एक एम्ब्रियो जो है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा और एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में आएगा. ठीक है, यहाँ पर ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में सेल डिवीजन किस तरह से होता है, ये एक उसका जनरल सा ओवरव्यू है. नाउ what are the steps, what are the processes of cell division? सेल डिवीजन किस तरह से होता है? तो जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन भी कोई एक सिंपल प्रोसेस नहीं है. सेल डिवीजन के भी यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स हैं. सेल डिवीजन भी अलग अलग तरह से होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म है उसमें किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं. तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो 3 तरह का सेल डिवीजन देखने के लिए मिलता है. ए माइटोसिस, सेकेंड वन इज माइटोसिस, एंड द थर्ड वन इज मियोसिस. एमाइटोसिस मिलता है जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं मोस्टली, उनके अंदर एमाइटोसिस मिलता है. एंड इन द केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सॉरी, एमाइटोसिस जो मिलता है वो मिलता है जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर, और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे ऑल आर हैविंग द माइटोसिस एंड मियोसिस. सो सेल डिवीजन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का, उसके खुद के भी 2 स्टेप्स हैं. नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन इन द न्यूक्लियस एंड cytokinesis means division in the cytoplasm. तो सबसे पहले क्या होगा? सेल डिवीजन होने के लिए सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस. तो हम यहाँ पे जितने भी स्टेप्स पढ़ेंगे वो सब किसके पार्ट होंगे? कैरियोकाइनेसिस के. हम सबसे पहले यहाँ पर किसको स्टडी करें? कैरियोकाइनेसिस को. सो नाउ वी आर कमिंग बैक टू द एमाइटोसिस. The process of amitosis was discovered by Ramak in 1841, and Ramak observed the process of amitosis in the red blood corpuscles of the chick embryo. Right? Ramak observed the process of amitosis in the red blood corpuscles or RBCs of the chick embryo for the first time. After that, in 1882, E. Fleming was there. मतलब सेल डिवीजन होने का ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जिसके थ्रू डायरेक्ट सेल डिवीजन
हो सकता है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर किसी और सेल ऑर्गेनल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इट इज अ डायरेक्ट प्रोसेस, राइट। डायरेक्ट प्रोसेस का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट प्रोसेस? दैट नो स्पिंडल apparatus विल फॉर्म। अभी आप आगे पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, तो वहां पर आप देखेंगे कि स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ए माइटोसिस के प्रोसेस को डायरेक्ट प्रोसेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर स्पिंडल एपरेटस का, स्पिंडल फाइबर्स का कोई किसी तरह का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता, और जब स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बट ऑब्वियस है कि स्पिंडल एपरेटस भी यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। No development of embryonic membranes in the case of vertebrates will takes place, and amitosis may also be found in the diseased tissues. Diseased tissues. Now this is the very important, how it will takes place in the diseased tissue. आप पढ़ते हैं कि बीमारी हुई, कोई टिश्यू के अंदर कोई कमी आई और बहुत जल्दी जल्दी सेल्स ने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। वो जो सेल्स के अंदर बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, जो रैपिड ग्रोथ होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एमाइटोसिस। नाउ वी आर कमिंग बैक टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ mitosis. So in this class we will discuss mitosis. What is the mitosis? The term mitosis originate from the Greek word that is mitos, and in Greek language the meaning of mitos is thread like, धागे की तरह, ठीक है। Why this type is known as mitosis? Because in this situation, in this type of cell division, in the mitosis type of cell division, the chromosomes appears in the shape or in the form of the threads, long, thin and long threads. So the term has been given mitos, right? Thread like. In 1875, a scientist was there, Edward Strasburger. So in 1875, Edward Strasburger observed the process of mitosis in the plant cells. He observed the process of mitosis in the plant cells, and he continued to study all the process of the mitosis in these plant cells. After that, in the animal cell, the process was discovered in 1879 by W. Fleming. And W. Fleming observed this process in animal cells, ठीक है। But the actual credit for the discovery of the term mitosis goes to whom? Fleming, W. Fleming.
The process was observed by the Edward Strasburger in the plant cells for the first time, but in the animal cells, the process of cell division was the process of mitosis type of cell division was observed by the W. Fleming. So the credit for the discovery of the term mitosis goes to the W. Fleming. Now where it is find कहाँ होता है mitosis? Mitosis is found in all the somatic cells. Somatic cells कौन सी होती हैं? All the cells which are present in the body except the germinal tissues. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि जो जर्मिनल टिश्यूज हैं उनके अतिरिक्त जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होंगी दे ऑल आर नोन एज सोमेटिक सेल्स. ये प्लांट्स में भी होंगी और एनिमल्स में भी होंगी. दीज आर फाउंड इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स बोथ. अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ठीक है. एंथर और ओव्यूल यहां से क्या बनते हैं? एंथर एंड ओव्यूल. यहां से क्या बनते हैं? यहां से क्या बनते हैं प्लांट्स में? यहां से प्लांट्स में बनते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो यहां पर सोमेटिक सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगी. सोमेटिक सेल्स इन दो ऑर्गन्स को छोड़कर बाकी सब में प्रेजेंट होंगी. एनिमल्स के केस में सोमेटिक सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी में. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या हैं? टेस्टिस एंड ओवरी. तो यहाँ पर इन वाले ऑर्गन्स में सोमेटिक सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगी. ये कहाँ मिलेंगी? सोमेटिक ये कहाँ मिलते हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जर्म टिश्यूज के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो है माइटोसिस नहीं होता. माइटोसिस कहाँ होता है? माइटोसिस होता है सोमेटिक सेल्स में. तो इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़कर बॉडी के और जितने भी पार्ट्स हैं जहां पर भी सेल्स प्रेजेंट हैं सब जगह सोमेटिक सेल्स होंगी और सोमेटिक सेल्स प्रेजेंट है. सोमेटिक सेल्स अगर हैं तो डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस होगा. इज इट क्लियर? सोमेटिक सेल्स हैं. सोमेटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस हो रहा है. तो माइटोसिस की क्या क्वालिटी है? माइटोसिस की क्या स्पेशलिटी है? माइटोसिस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि जो डॉटर सेल्स बनती हैं daughter cells are alike parent cells. Number 2, number of chromosome will be same as these were in the पेरेंट सेल. जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहां पर डॉटर सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे. एंड एट द लास्ट ऑफ द माइटोसिस हाउ मेनी डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड? 2 डॉटर सेल्स. फ्रॉम वन पेरेंट सेल. एक पेरेंट सेल से कितनी सेल्स बनेंगी? 2 डॉटर सेल्स बनेंगी. सो दीज आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ द माइटोसिस. माइटोसिस क्यों होता है? माइटोसिस होने के लिए क्या जरूरी है?
और माइटोसिस के इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी क्या स्पेशल फीचर्स हैं। नाउ कमिंग बैक टू द कैरियोकाइनेसिस, हमने पढ़ा सेल डिवीजन के दो स्टेप्स हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो हम सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे, कैरियोकाइनेसिस को। कैरियोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। हम कैरियोकाइनेसिस किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, माइटोसिस के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। तो कैरियोकाइनेसिस पढ़ने के लिए यहाँ पर हमें 4 फेजेस हैं कैरियोकाइनेसिस की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and the last one is the टीलोफेज। ठीक है, चारों ही फेजेस जो हैं बहुत अच्छे से समझने की हैं, इंपॉर्टेंट फेजेस हैं कि इन चारों फेजेस में अलग अलग चेंजेस आते हैं सेल के अंदर। चारों फेजेस जो हैं वो अलग अलग तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी सेल में। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए हमें समझने के लिए क्या ज़रूरी है कि इन चारों फेजेस में किस फेज में कौन से चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस के अकॉर्डिंग सेल अपने आप को किस तरह से अडेप्ट करती है, राइट। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द प्रोफेज। प्रो, ग्रीक लैंग्वेज में, in the Greek language the pro means first. This is the first phase of the कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहली बार जो डिवीजन होता है, सबसे पहली बार डिवीजन नहीं कहेंगे, जो सबसे पहली बार चेंजेस आते हैं वो किस में आते हैं, प्रोफेज में आते हैं। फेजेस, फेजेस का मीन्स अपीयरेंस, मीन्स इट इज द फर्स्ट अपीयरेंस फेज इन द सेल डिवीजन। सो यहाँ पर क्या होता है, वाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट, वाई द नेम हैज बीन गिवन प्रोफेज और फर्स्ट, बिकॉज इन दिस फेज chromosomes appears for the first time. सबसे पहली बार क्रोमोसोम्स जो दिखाई देते हैं वो कौन सी फेज में दिखाई देते हैं, प्रोफेज में दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इस फेज को कहते हैं प्रोफेज। इस फेज को जो टर्म दी गई वो दी गई प्रोफेज। नाउ द प्रोफेज हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 3 फेजेस। हमें प्रोफेज पढ़ना है। प्रोफेज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है। नंबर 1 इज द अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अर्ली प्रोफेज को। यहां पर कोई भी सेल है अगर, तो अर्ली प्रोफेज में सबसे पहले सेल कैसी हो जाती है, कुछ कुछ ओवल शेप्ड हो जाती है। अगर सेल राउंडेड है तो सेल की शेप कैसी हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी सी ओवल शेप्ड हो जाएगी। तो इसके अंदर जो सबसे पहला चेंज क्या होता है, सेल की शेप कैसी हो जाती है, सेल की शेप थोड़ी थोड़ी सी ओवल शेप्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। जब सेल की शेप ओवल शेप्ड होनी स्टार्ट होती है तो जो सेल का साइटोस्केलेटन है वो साइटोस्केलेटन भी टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि सेल को आगे डिवीजन के लिए जाना है और सेल को अपने अंदर क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस लेकर आने, क्योंकि प्रोफेज है, क्रोमोसोम्स फर्स्ट टाइम अपीयर हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो सेकेंड चेंज होगा सेल के अंदर वो क्या होगा कि जो साइटोस्केलेटन है विल डिसअपीयर, डीपॉलीमराइज।
जब साइटोस्केलेटन डीपॉलीमराइज होगा तो इसका मतलब साइटोस्केलेटन टूटेगा, धीरे धीरे उसकी शेप चेंज हो जाएगी, और जैसे ही साइटोस्केलेटन डीपॉलीमराइज होगा उसी के साथ जो साइटोप्लाज्म है सेल का वो रिफ्रैक्टाइल हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा चमकीला? क्योंकि वहां पे प्रोटीन्स और ज्यादा अमाउंट में अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे, रिफ्रैक्टाइल हो जाएगा और विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा भी हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ चेंज, नेक्स्ट चेंज क्या होगा यहां पर? जो गोल्जी बॉडी है सेल के अंदर, गोल्जी बॉडी जो प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी विल ब्रेकअप, और गोल्जी बॉडी का ब्रेकअप होगा तो गोल्जी बॉडी किससे मिलकर बना होता है? वेसिकल्स से। गोल्जी बॉडी टूट जाएगा और क्या बनाएगा? वेसिकल्स को फॉर्म करेगा, पुटिकाओं को फॉर्म करेगा, वेसिकल्स बन जाएंगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज in the prophase that would be take place here, number 5th point, this is the all the chromosomes becomes thin and long. ठीक है, all the chromosomes will become thin and long. When all the chromosomes will become thin and long, this stage is called spireme stage. This stage is called spireme stage. Chromosomes will become thin, पतले हो जाएंगे, long हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स कैसे दिखाई देते हैं? यहाँ पे क्रोमोसोम्स इस तरह से दिखाई देते हैं कि एक सेल है, ओवल शेप्ड है, और क्रोमोसोम्स लंबे हैं, पतले हैं, बहुत सारे तरह से इस तरह से आपस में उलझे हुए से दिखाई देते हैं, सेल के अंदर पड़े हुए से दिखाई देते हैं। These gives like the appearance of a wool ball. जैसे ऊन का गोला होता है, ऊन का जो गोला होता है लिपटा हुआ, अगर आप उसमें थोड़ी सी ऊन को खोल दें तो वो आपको इसी तरह के धागों का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड स्पाइरीम स्टेज, राइट। ये जो स्पाइरीम स्टेज है, इसी स्पाइरीम स्टेज से बाद में मिडिल प्रोफेज में जाकर सिस्टर क्रोमेटिड्स अपीयर होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखाई देने स्टार्ट होते हैं। इज इट क्लियर? सेल की शेप कैसी हो गई? ओवल शेप्ड हो गई। जो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट था वो डीपॉलीमराइज हो गया, साइटोप्लाज्म रिफ्रैक्टाइल और विस्कस हो गया, चमकीला हो गया, गाढ़ा हो गया। गोल्जी बॉडी टूट गई, गोल्जी बॉडी के टूटने से क्या हुआ? वेसिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज आया सेल के अंदर अर्ली प्रोफेज में वो क्या था कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो लंबे हो गए, पतले हो गए, क्रोमोसोम्स बिकम थिन एंड लॉन्ग, एंड दिस स्टेज इज नोन एज द स्पाइरीम स्टेज. Spireme stage is a symbol, or we can compare the spireme stage with a wool ball. एक ऊन के गोले से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं. That is found in an compact stage, right? So now the next we will discuss the prophase, middle prophase, middle prophase. मिडिल प्रोफेज में क्या हुआ? सबसे पहला जो चेंज होगा मिडिल प्रोफेज में, आपने अर्ली प्रोफेज में देखा कि जो क्रोमोसोम्स थे वो थिन एंड लॉन्ग थे. द क्रोमोसोम्स appears just like a thin and long structures. In the middle prophase, these thin and long chromosomes will give the appearance of thick and short. Chromosomes appear thick and short. मोटे हो गए और छोटे हो गए. ठीक है, क्रोमोसोम्स अपीयर थिक एंड शॉर्ट. अब जब क्रोमोसोम्स
मोटे हो गए, थिक हो गए, शॉर्ट हो गए। तो सेकेंड इसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम्स अटेन्स their actual shape। क्रोमोसोम्स ने अपनी एक्चुअल शेप को यहां पर अटेन कर लिया, उन्हें अपनी एक्चुअल शेप मिल गई। थर्ड चेंज क्या होगा, थर्ड चेंज इंपॉर्टेंट चेंज है इन मिडिल प्रोफेज। जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। न्यूक्लियोलस ने डिसअपियर होना स्टार्ट कर दिया। न्यूक्लिक एसिड ऑफ द न्यूक्लियोलस ट्रांसफॉर्म्स into chromatids। आपने सेल के बारे में पढ़ा है, ये एक सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। और इस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। जब न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है तो जो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है वो न्यूक्लिक एसिड क्रोमेटिड्स की फॉर्म में आ जाता है, क्रोमेटिड्स को अटेन कर लेता है। ठीक है, लास्ट चेंज क्या होता है, धीरे धीरे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल ब्रेक इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, nuclear membrane will break up into its component। this is all about the middle prophase। अब देखिए, जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे ब्रेकअप होना स्टार्ट होगी तो क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे जैसे हटेगी, डिसअपियर होगी, तो जो न्यूक्लियस का जितना भी कंटेंट है दैट विल गेट मिक्स्ड अप विद द कंटेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। नाउ नेक्स्ट वन इज द लेट प्रोफेज। दिस इज द लेट प्रोफेज। यहां पर क्या होगा, लेट प्रोफेज में स्पिंडल will attain its shape। spindle will attain their shape, its shapes। second change क्या होगा, nuclear membrane will disappear, पूरी तरह से disappear हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल डिसअपियर। और जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी क्या होगा, जितने भी क्रोमोसोम हैं, जो भी क्रोमोसोम प्रेजेंट है एंड ऑल द न्यूक्लियर कंपोनेंट, these all will get mixed with cytoplasm। all the chromosomes and the nuclear component will get mixed with the cytoplasm। अब यहां पर क्या हुआ, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, जो कुछ भी है सब
एक ही साथ है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स यहां पर सेल में फ्री लाइंग स्टेट में आ जाएंगे। यहां पर जो नेक्स्ट चेंज होगा वो क्या होगा, क्रोमोसोम्स will start their movement towards the center point। ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ चेंजेस हैं जो कि लेट प्रोफेज में होंगे। किस तरह से होंगे ये देखिए, ये सेल है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपियर हो गई है पूरी तरह से। जो क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम्स अपने सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्म में ये यहाँ पर पड़े हुए दिखाई देंगे, ये क्रोमोसोम्स पड़े हुए दिखाई देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर पूरी एक सेल है जिस सेल में क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, और जब भी जैसे ही लेट प्रोफेज आएगी, उस लेट प्रोफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये किधर की तरफ मूवमेंट करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे सेंटर की तरफ। सेल में जो भी सेंटर पॉइंट होगा ये उस सेंटर पॉइंट की तरफ अपना मूवमेंट शो करते हैं। दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द सेल एंड सेल कंपोनेंट विच वुड बी ड्यूरिंग द लेट ऑफ द प्रोफेज। तो आप देख सकते हैं प्रोफेज जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स हैं इसके, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। और यहाँ पर सेल के अंदर कितने सारे चेंजेस हुए, इतने सारे चेंजेस होने की वजह से जो प्रोफेज है, दिस इज द लार्जेस्ट फेज, दिस इज द लार्जेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, सेल साइकिल, आपने वहां पर फेजेस के बारे में पढ़ा था। तो यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं। सेल डिवीजन माइटोसिस में को आपने स्टडी करने के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। नाउ द first phase, that is the prophase, that is the longest or the largest phase of the cell division that has been completed. Now the second phase will come, and the second phase is metaphase. The second phase is metaphase. We will discuss metaphase in the next class. Thank you.